नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। कोरोना की दूसरी लहर में ग्राफ लगातार संक्रमण का बढ़ता जा रहा है, तो वहीं वैज्ञानिकों ने सितंबर तक तीसरी लहर की आशंका जता दी है। ऐसे में सरकार की ओर से टीकाकरण अभियान को बढ़ाने की लगातार कोशिश की जा रही है, लेकिन वैक्सीन से पहले और बाद में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रेहान से जानिए। However, from a public health point of view, when you're looking at this huge surge of cases, that seems to be an acceptable and good number. Second issue was what happens to your immunity if you delay the second shot in terms of long-term protection. The data which emerged, and this was based on even mathematical modeling, suggested that if you took the Covishield vaccine in less than 4 weeks' time or around the fourth week, your immunity was only 55 to 60%. But if you really took the second shot after 12 weeks, this went up to almost 80 to 85%. And therefore, this data, coupled with the data that had emerged from the public health policy which UK took, and the fact that we are facing a similar situation, has, I think, prompted the regulators to recommend that the Covishield vaccine could be taken later rather than earlier, and that is why it's been extended to 12 to 16 weeks. So this is, in my mind, a pragmatic decision looking at all of this. There is science behind it, but there are public health issues also behind it. The other important issue to remember is that at a global level and also at a national level, there is always going to be some degree of shortage as far as vaccines are concerned. We will never be able to have enough vaccines for more than 1 billion citizens of our country. And if you're looking at 2 doses, we're looking at 2 billion doses. Globally, this is not possible. If you look at the vaccination that we've done till now, we have vaccinated, the number of people that we vaccinated is more than the population of many countries in Europe combined. So the number of people who have been vaccinated is huge, but it's not that much if you look at the population of our country. And therefore, we will have to have a graded response. Vaccines will be available in large amount, probably in about 2 months' time, because the companies which are making vaccines will start opening up their manufacturing plants. There will be more vaccine doses available. From outside also, we will get vaccine. So both the Covishield, Covaxin, and Sputnik vaccine would be manufactured in India by more and more manufacturing plants. Sputnik has tied up with a number of companies in India to manufacture the vaccine. New plants are being set up both by Bharat Biotech and Serum Institute. And by July, August, we will have a large number of doses available. So I think there has to be a graded response where when we start talking of two things, who should be vaccinating first, I still believe that looking at comorbidities and the chance of dying of COVID-19 is much higher in those with comorbidities and the elderly. We should still focus on trying to vaccinate them as much as early as possible. And then also look at the larger population who can be vaccinated in a graded manner. We will not be able to vaccinate everyone in a day or two or even in a month. So I think we should develop a strategy of giving appointments which could be 2, 3, or 4 months later for the younger age group, and gradually work on a strategy that more and more people can be vaccinated. The vaccines are there, they will be available, but we will have to do it in a responsible manner so that we can protect our citizens and make sure that we are able to vaccinate everyone at some point in time and as early as possible. But I think at the end, the other thing that I really like to stress upon is that vaccine is one part of our strategy. We have to work also on making sure that we have good health infrastructure, and secondly, aggressively push for COVID appropriate behavior, because wearing a mask will protect you not only from the current virus, but even subsequent variants which may emerge. So wearing a mask, physical distancing, and washing your hands regularly still is very, very important. And we have to continue to do that even after we vaccinate ourselves. So I'll stop here and ask Dr. Naresh Trehan to take this forward in terms of the vaccination issue and what we should do. Thank you very much. तो जब वैक्सीन का इशू आता है, पब्लिक को भी ये एहसास है कि अल्टीमेटली जो प्रोटेक्शन मिलेगी वो वैक्सीन से ही मिलेगी। ये जो बात सही है, पर उसके साथ साथ जैसे डॉक्टर गुलेरिया बता रहे थे कि वैक्सीन के क्या पहलू है,
और कैसे कैसे इसको दुनिया ने किया और कैसे हम हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी तीन चीजें हैं जिससे हम इस वायरस जो बहुत भयंकर है इससे लड़ाई कर रहे हैं। इसमें सबसे तो पहले तो है ही पब्लिक का रोल कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, ये समझें कि ये जो सर्ज सेकंड वेव आई है ये पहली वेव से 4 गुना ज्यादा है। अगर जो हम इसको समझते हैं कि ये बहुत सारे लोगों को लपेट में ले रही है और खास करके कई फैमिलीज को भी लपेट में ले दिया, इसका कारण ये हुआ कि जब हमें एहसास हुआ कि जो पहली वेव खत्म हो रही है, लोगों ने ये सोचा कि अब हम अपना बिहेवियर जो है, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जो 3 चीजें हम मास्किंग, डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन सारा वक्त कहते रहते हैं, उन्होंने उसमें बहुत रिलैक्सेशन कर दी इस कॉन्फिडेंस से कि ये वायरस चला गया। तो पहला एहसास तो मैं चाहता हूं कि पब्लिक ये समझे कि वायरस अभी भी है, वो म्यूटेट भी कर रहा है और हमें ये खतरा है कि किस तरीके से वो म्यूटेट करेगा और कितना भयंकर होता जाएगा। तो जो अभी हमने इस वेव में देखा है, एक तो 4 गुना ज्यादा एकदम बहुत रफ्तार से चली गई। दूसरा हमने देखा कि इसके अंदर जो इफेक्ट पड़ रहा है कि काफी सीवियर लंग्स के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। जो हम HRCTs देख रहे हैं, वो HRCT जब पहली बार में तो हमने 22/25 स्कोर, 24/25 स्कोर बहुत कम देखा। इस जो हम हॉस्पिटल में अब पेशेंट्स एडमिट कर रहे हैं या वैसे जिनके हम HRCT देखते हैं, तो ये काफी तादाद में बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो भी कुछ हुआ इस वेव में, जो इन्फेक्शन हो रहा है वो पहली वेव से ज्यादा है। तो इसका पहला मतलब जो पब्लिक ट्रांसलेट करेगी कि भैया अब इससे और भी ज्यादा बचना है और भी ज्यादा मास्किंग करनी है। और ये भी एडवाइजरी दी गई है कि अगर जो आप बाहर जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, तो डबल मास्क लगा के जाएं। घर पे भी आप एक 3 लेयर सर्जिकल मास्क या 3 लेयर क्लॉथ मास्क पहन के रहें कि एक दूसरे से भी अगर जो किसी को हो गई इन्फेक्शन के और मेंबर्स ऑफ द फैमिली को नहीं फैले। अब दूसरा पहलू आया कि हम ट्रीटमेंट की जो बात कर रहे हैं, उसकी जो प्रोटोकॉल्स हैं, काफी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि कैसे वायरस को ट्रीट करना है। और इसका जैसे ही सिम्टम्स हो अपने आप को आइसोलेट करें, क्योंकि ये पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको खांसी, जुकाम, गले में दर्द वो होगा, बुखार होगा, वो मोस्टली पॉजिटिव निकलेंगे। तो इसीलिए आप इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे तो और फैमिली मेंबर्स बच सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए उचित है जिनको एक सीवियर इन्फेक्शन हो रही है या मॉडरेट से ज्यादा सीवियर तक पहुंच रही है। उनके लिए जो हम दवाइयां यूज करते हैं उसको इंट्रावीनस यूज भी करना पड़ता है, हाई ऑक्सीजन भी कई बार देनी पड़ती है। तो हॉस्पिटल बेड्स उन्हीं के लिए रिजर्व होने चाहिए, क्योंकि ज्यादा तादाद में हम होम क्वारंटीन और होम ट्रीटमेंट में 90% लोगों को ट्रीट कर सकते हैं और वो ठीक भी हो जाएंगे। पर ये डॉक्टर की सुपरविजन में होना चाहिए, क्योंकि जब डॉक्टर को ऐसा लगे कि हॉस्पिटल जाना है तभी आप जाएं हॉस्पिटल में, क्योंकि बेकार में बेड ऑक्यूपाई करने से जिनको जरूरत है वो तकलीफ में आ जाएंगे। तो आज जो मेन मुद्दा है वो है वैक्सीन का। जैसे डॉक्टर गुलेरिया समझा रहे थे कि 3 वैक्सीन अब अवेलेबल हैं और आने वाले समय में 4 से 6 हफ्ते में, जुलाई के फर्स्ट वीक में अनुमान लग रहा है कि ये तादाद बहुत तादाद में अवेलेबल हो जाए। अच्छी बात यह है कि हिंदुस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध हो रही है हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो वैक्सीनेटर्स जिनको कहते हैं, जो ट्रेन हो वैक्सीन देने के लिए, उसकी तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ये आप लोगों को इतना समझ रखना चाहिए कि पैनिक वैक्सीन के लिए करना उसमें वो उचित नहीं है आज के दिन, क्योंकि जिस रफ्तार से अब चल रही है, हमने क्लोज टू 20 करोड़ लोगों को लगा भी दी और ये रैंप अप होगी जैसे अब सप्लाई आने लगी। और सप्लाई से ये फायदा हो गया कि एक ही नहीं, पहले 2 वैक्सीन थी, ये तीसरी स्पुतनिक भी आ गई,
और उसका भी प्रोडक्शन रैंप अप हो रहा है, तो आने वाले समय में इसकी तादाद मिल जाएगी, तो सबकी बारी आएगी। अब ये भी सही है, सारी दुनिया ने भी ऐसा किया कि जो ज्यादा से ज्यादा वल्नरेबल है, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स थे या एल्डरली थे या जो 45 साल की उम्र से ऊपर थे, उनको पहले वैक्सीनेशन दिया गया। ये क्योंकि उनकी जो इन्फेक्शन है और मोर्टेलिटी है वो उनमें ज्यादा होती है, इसीलिए जो यंगर पॉपुलेशन है 45 से नीचे, अब उनके लिए भी खुल गया है। पर जैसे हर देश में हुआ है, ये हिंदुस्तान में ही नहीं होगा, सब देशों में हुआ है कि सबको सिक्वेंशियली अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी और सबको वैक्सीन लगेगी। इतनी देर में ये घबराना, हमें जो सबसे बड़ा जो हमने पहले ही बताया कि वेपन है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, पर्सनल लॉकडाउन में जाना है, और अगर जो वो अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखेंगे तो ये चेन वैसे ही स्लो डाउन हो जाएगी, आपको भी प्रोटेक्शन मिलेगी, आपकी फैमिली को भी, और ऐसे हिंदुस्तान में भी केस कम हो जाएंगे। तो अगर जो हम सब मिलके ऐसा करेंगे तो बहुत जरूरी है कि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन उपलब्ध हो रही है तो सबको टीकाकरण हो जाएगा।